नमो नमः. Last time we have completed lesson number 7, that is Varnamala. Any doubt regarding Varnamala, Swar and Vyanjanas, and 5 groups of Vyanjanas, Ka Varga, Cha Varga, Ta Varga, etc. You have to learn the names of that groups. Ka Varga is known as Kanthyaha. We'll just revise it and then we'll move ahead. Okay, so Ka Varga is known as Kanthyaha. Then Cha Varga is known as Talavyaha. Ta Varga is known as Murdhanyaha. Ta Varga is known as Dantyaha, and Pa Varga is known as Oshtyaha. So Ka, Cha, Ta, Ta, Pa. In this manner you have to remember 5 classical consonants. Vargiya Vyanjana. Yes, Deepika. What is Ma'am, your doubt? page number 14, question number 2. What is the answer of first answer and meaning also? Okay, Samvatsarasya Kati Masaha. Masaha means months and Samvatsarasya of year. So how many months are there in a year? Ma'am, 12. 12. So what is the word for 12 in Sanskrit? Uh, You can observe up above. yes, ma'am. Dwadasha. Very good. So now what is the full answer to that question? Uh, san, Sanvastrasya Dwadasha Masaha. Ma'am, what is the Very good. pronunciation of first? Yes, I'm correcting you. Samvatsarasya. Sarasya. हाँ, 2 पार्ट्स में याद रखना बेटा. संवत एंड सरस्य. संवत एंड सरस्य. Okay, ma'am. Okay? Hmm. Yes. Thank you, Any ma'am. doubt? No, ma'am. Okay. Okay, Deepika. Yes, Thank you, ma'am. anybody else? Do you have doubt in any lesson which is already completed till now? You can ask your doubts in chat box also if you are unable to unmute. No doubts? Okay. Now we'll move ahead to the next part. Okay, students. So you know the table of Deva Vanamala now. So also you know the meaning of table Deva, and that same meaning of table Deva we have to apply in each and every table. Okay, same. वही द्वितीय विभक्ति के लिए preposition to, तृतीया के लिए preposition जो भी है by और with, चतुर्थी के लिए for, पंचमी के लिए from. Prepositions will remain same everywhere in each and every table. सिर्फ वो noun change होगा. ओके, अ गॉड, टू गॉड्स, मेनी गॉड्स था तो जंगल के लिए अ जंगल, टू जंगल्स एंड मेनी जंगल्स. फॉर माला, गार्लैंड, टू गार्लैंड्स एंड मेनी गार्लैंड्स. ओके. यस. अथर्व, डू यू हैव एनी डाउट? Yes, Atharva, unmute yourself. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, in this chapter, in our school it is done, but I don't understood the 8.131 in this Okay. chapter. Today we are going to start with 8.1 and 8.2 we will complete. You have doubt in 8.3 also, right? Yes, ma'am. Okay, okay. So we have our lecture tomorrow also. So today and tomorrow you will be getting answer for all your doubts. Okay? Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Okay, Atharva. Okay, students, let's start with the very important chapter, that is chapter number 1, which is divided into parts. So you can observe there is
8.1, 2, 3, 4, 5. Okay, and also 6 and 7. So total 7 parts are there of same lesson number 8. ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले इसको जान लो, फिर आपका जो जर्नी है ये लेसन नंबर 8 का वो बहुत ही इजी रहेगा. दो इट इज अ वेरी बिग कंटेंट, बट ऐसा कुछ नहीं है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, बट इट इज वेरी इजी बिकॉज इट इज सिमिलर और रिलेटेड टू द टेबल्स देव वन एंड माला. तो हमें पता है देव वन माला में देर आर टोटल 8 विभक्तिज. Okay, how many vibhaktis were there? 8 vibhaktis, and hence ये जो lesson है 7 विभक्तिज में डिवाइड किया गया है. मतलब हम हर एक विभक्ति का फंक्शन एक्चुअली परफॉर्म करने वाले हैं इन सेंटेंस. सी आई एम रिपीटिंग इट अगेन स्टूडेंट्स. टेबल में टोटल 8 विभक्तिज होती है, उसमें से 7 विभक्तिज मतलब विभक्ति नंबर 2 द्वितीय विभक्ति से संबोधनम विभक्ति का एक्चुअल फंक्शन जो होता है, उसका काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, ये हम सेंटेंस में यूज करके समझ के लेने वाले हैं कि हमें संस्कृत में वो विभक्ति एक्चुअली कहाँ पे यूज करनी है. एंड हेंस दिस लेसन इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स. अभी आप पूछोगे कि मैम फिर पहले विभक्ति के लिए लेसन क्यों नहीं बनाया या कोई पार्ट क्यों नहीं है? बिकॉज फर्स्ट विभक्ति प्रथमा इज ओनली इंडिकेट नाउन, सिर्फ नाउन बताती है. लाइक देवह मीन्स क्या? एक गॉड. देवौ 2 गॉड्स एंड देवाह मेनी गॉड्स. तो उसका कोई अदर फंक्शन नहीं है. इट इज जस्ट टू डिनोट अ नाउन, वेदर इट इज इन सिंगुलर, डुअल और प्लूरल. बस इतना ही बताती है प्रथमा विभक्ति. इसीलिए वो विभक्ति को ये लेसन नंबर 8 में कंसिडर नहीं किया है. लेसन नंबर 8 में द्वितीय से लेकर संबोधनम तक सब विभक्तिज को कवर किया गया है, बट in different sequence. So let's understand what is lesson number 8 actually. Okay, in every lesson you have to refer table again and again. You have to refer the table of deva here. तो पहला लेसन स्टार्ट करते हैं बच्चों. संबंध वाचकाहा. संबंध का मीनिंग क्या होता है बताओ मुझे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संबंध? हिंदी मराठी मध्ये आपण हा शब्द वापरतो संबंध. Everybody, come on, answer it. Very good, Shreya, Atharva, correct answer. Relation. Yes, Vedika, correct. Relation. संबंध म्हणजे relation. संबंध is relation. वाचकाहा means denote करने वाला. The one who is denoting the relation between two persons, two people. वो शब्द को हम बोलेंगे संबंध वाचकाहा. तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले बेसिकली, अगर मुझे कोई रिलेशंस बताना है या फिर मुझे मेरी चीजों के साथ भी मेरा रिलेशन बताना है, जैसे कि आई हैव वन बुक ऑफ संस्कृत, देन आई हैव टू टेल कि दिस इज माय बुक. द आमोदह बुक ऑफ संस्कृत इज माइन, मेरा है, ये मुझे बताना है, मेरा पोजेशन भी बताना है. तो भी आई विल यूज दीज वर्ड्स फ्रॉम द लेसन 8.1. ऑल्सो अगर मुझे रिलेशन बताना है, मतलब इफ यू वांट टू टेल दैट ही और he is your father and she is your mother, ऐसे रिलेशंस आपको बताने हैं, या फिर XYZ is your uncle, XYZ is your brother, ये रिलेशंस अगर हमें बताने हैं, then we will use this lesson 8.1. how? let's understand. सबसे पहला देखना है, दो बॉक्स दिए हुए हैं. पहले बॉक्स में लिखा हुआ है दशरथः, रावणः, धृतराष्ट्रः, रामः एंड भीमः. एवरीबडी, आर यू विथ मी? प्लीज फोकस ऑन फर्स्ट बॉक्स. दशरथः, रावणः, धृतराष्ट्रः, रामः, भीमः. एंड राइट साइड में वी हैव रामः, मेघनादः, दुर्योधनः, लवः एंड घटोत्कचः. अभी ये क्या एक्सरसाइज है एक्चुअली, पहले अंडरस्टैंड करते हैं. बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है. लेफ्ट साइड का बॉक्स जो है दैट इज नेम्स ऑफ फादर. ओके, कुछ महाभारत रामायण के कैरेक्टर्स लिए गए जो फादर है. एंड राइट साइड के बॉक्स में उनके ही बेटों का यानी कि सन्स का नाम दिया हुआ है. सो फादर एंड सन्स का रिलेशन हमें एक सेंटेंस में लिखना है. जैसे कि अगर हिंदी में मैं बोलूंगी तो दशरथ इज फादर ऑफ राम, उसके सामने ही नाम रहेगा उसका. वी डोंट हैव टू मैच द नेम्स, सामने ही दिया हुआ है नाम. दशरथ इज फादर ऑफ राम. और मैं उल्टा भी बोल सकती हूँ, राम इज सन ऑफ दशरथ. यस, इज इट पॉसिबल? Dashrath is father of Ram and Ram is son of Dashrath. Both way we can frame sentence. So अभी कैसे फ्रेम करना है वो देखते हैं. राइट साइड में एक क्वेश्चन पूछा है, कस्य पुत्रः रामः, whose son is Ram. राम किसका बेटा है?
तो हमने देखा था ये जो वर्ड है कस्य साउंड्स लाइक देवस्य, एंड इसीलिए उसका आंसर भी वैसे ही चाहिए। तो देखो पहला वर्ड दशरथ जो है उसको मैंने स्य ऐड कर दिया, देन इट विल बिकम दशरथस्य पुत्रः रामः। दशरथ का बेटा राम है, राम इज सन ऑफ दशरथ। तो बेसिकली इंग्लिश में जहां पे भी हम ऑफ ये प्रेपोजिशन यूज करेंगे वहां पे संस्कृत में स्य यूज करना है। हिंदी में जहां पे भी हम का यूज करेंगे, दशरथ का बेटा है, रावण का बेटा है, धृतराष्ट्र का बेटा है, तो का इन हिंदी एंड ऑफ इन इंग्लिश इज कॉल्ड एज स्य इन संस्कृत। तो दशरथस्य पुत्रः रामः। अभी उल्टा क्वेश्चन भी पूछा है देखो संस्कृत में, कस्य पिता दशरथः, दशरथ किसके पिता है, रामस्य, रामस्य पिता दशरथः। तो अब बस वैसे ही आपको रिमेनिंग सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं बाय ऑब्जर्विंग द टेबल। नाउ नेक्स्ट देखो, रावणस्य पुत्रः मेघनादः, मीनिंग क्या हो जाएगा उसका, रावणस्य पुत्रः मेघनादः। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस? क्विकली ड्रॉप योर आंसर इन चैट बॉक्स। वेरी गुड, मेघनाद इज सन ऑफ रावण, रावण के बाद से ऐड किया है ना तो ऑफ रावण। वेरी गुड, फैंटास्टिक। अभी सेकेंड फिल इन द ब्लैंक आपको कंप्लीट करनी है, सो यू कैन रेज योर हैंड एंड ओरली यू हैव टू आंसर। डैश पुत्रः दुर्योधनः, किसका पुत्र है, कस्य पुत्रः दुर्योधनः। आई विल आस्क यू क्वेश्चन, कस्य पुत्रः दुर्योधनः, देन हाउ विल यू आंसर? यस दीपिका। Yes, ma'am. कस्य पुत्रः दुर्योधनः? धृतराष्ट्रस्य पुत्रः दुर्योधनः। वेरी गुड, धृतराष्ट्रस्य पुत्रः दुर्योधनः। Very good, Deepika. So Deepika have added Sya after Dhritarashtra because she wants to tell that of Dhritarashtra. The meaning is of Dhritarashtra. Very good, Deepika. Now next, third question. Dash dash Lavah. तो अभी लवह जो है वो राम का पुत्र है, ऐसे आपको वहां पे एक सेंटेंस कंप्लीट करना है। लवह इज अ डॉटर, सॉरी, सन ऑफ राम। So who is ready to answer? Yes, Mehak. रामस्य पुत्रः लवः। वेरी गुड, रामस्य पुत्रः लवः, करेक्ट आंसर। चलो फोर्थ, भीमस्य डैश डैश। अभी स्य वाला वर्ड जो भी उसका नाम है वो आपको लिखना है। यस वेद। यस मैम। भीमस्य डैश डैश। भीमस्य पुत्र घटोत्कचः। महाराजांची वेरी गुड, वेरी गुड। भीमस्य पुत्रः घटोत्कचः। तो घटोत्कच का कार्टून तो आपने देखा ही रहेगा। घटोत्कचः इज अ सन ऑफ भीम। देन नेक्स्ट फिफ्थ वन इज ऑलरेडी गिवन। अभी उल्टा हो गया, पिता। अभी हमें पुत्र नहीं बताना है, किसका पिता कौन है वो बताना है। मेघनादस्य पिता रावणः, रावण इज फादर ऑफ मेघनाद। नाउ हु विल टेल द नेक्स्ट आंसर? दुर्योधन के पिताजी कौन है? हाउ विल वी फ्रेम द आंसर? यस श्रेया। श्रेया, unmute yourself. Am I audible to you, student? Yes, ma'am. Yes, yes. हाँ श्रेया। दुर्योधनस्य पिता धृतराष्ट्रः. Very good, perfect answer. Seventh one, dash pita Ramah, whose father is Ram? Yes Atharva. मैम दशरथस्य पिता रामः। Very good, दशरथस्य पिता रामः, correct answer. चलो नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डैश डैश पिता। अभी आप यहाँ पे आपको आप राम एंड लव का नाम भी यूज कर सकते हो या भीम या घटोत्कच का नाम भी यूज कर सकते हो। एनी नेम यू कैन यूज हियर। सो हु विल टेल मी द आंसर फॉर इट? जस्ट द टास्क इज हाउ विल यू अप्लाई हियर टू इट? यस वेदिका।
Yes, ma'am. रामस्य पिता लवः. रामस्य पिता लवः. Then who is Dashrath? So sorry. दशरथस्य पिता रामः. अगेन थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. दशरथ के पिताजी राम थे कि राम के पिताजी दशरथ थे? दशरथ was राम्स पिताजी. हाँ, तो अभी थोड़ा सॉर्ट आउट करो और उसको लेफ्ट या राइट जरा बिठाओ. चलो Okay. लेफ्ट में देखो. रामस्य पिता दशरथ. फैंटास्टिक. लेफ्ट में हमेशा सन का नाम लिखना है, राइट में पिता का, बिकॉज हम पिता के लिए सेंटेंस बना रहे हैं. Okay, वेरी ma'am. गुड, वेरी गुड. You improve your answer. That is perfect now. So रामस्य पिता दशरथः. अभी ये आप सबके लिए यूज कर सकते हो. घटोत्कचस्य पिता भीमः. ये भी आंसर पॉसिबल है. घटोत्कचस्य पिता भीमः. ओके, तो सिंपली क्या किया हमने, स्य ऐड किया. जिसके साथ भी हमें रिलेशन जोड़ना है वहां पे स्य ऐड कर दो. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अभी नेक्स्ट में भी हमें स्य ही ऐड करना है. ओके, दो देयर इज अ न्यूटर जेंडर वी हैव टू ऐड स्य, बिकॉज हमें पता है कि देव एंड वन का टेबल सेम ही होता है. तो अभी इसमें भी हमें षष्ठी विभक्ति में स्य ऐड करना है. एक सेंटेंस वहां पे दिया हुआ है, दैट आई विल रीड. रामायणस्य कवि ही वाल्मीकि ही. रामायण के कवि वाल्मीकि थे. वाल्मीकि वॉज द पोएट ऑफ और राइटर ऑफ रामायण. वैसे ही महाभारतस्य कवि ही व्यासः. महाभारत के कवि व्यास थे. अभी कालिदास कौन से बुक का कवि है? हाउ विल यू राइट? कालिदास इज अ पोएट और राइटर ऑफ डैश डैश बुक. ऑफ डैश डैश बुक. So how will you answer it? Yes, Deepika. Yes, ma'am. Third one. Okay. रघुवंशम रश्म्य कविः कालिदासः. Okay. Good. You have tried well. But still there is some mistake. देखो, I will help you, दीपिका. पहले महाभारतम शब्द था तो मैंने म को रब कर दिया एंड स्य ऐड कर दिया. It will become महाभारतस्य. So now how will you apply sir to रघुवंशम? रघुवंशम okay. रघुवंशम रश्म्य कविः कालिदासः. देखो फिर से बोल रही हूँ मैं. डिलीट म एंड देन ऐड स्य. ट्राई करो एक बार. रघुवंश डिलीट म एंड ऐड स्य. रघुवंश्य. रघुवंशस्य कैसे प्रोनाउंस करोगे? रघुवंशस्य. वेरी गुड, वेरी गुड. नो प्रॉब्लम. तो पूरा आंसर हो गया रघुवंशस्य कवि ही कालिदासः. ओके, थैंक यू दीपिका. नो वरीज. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लिखते वक्त परफेक्ट लिखते हैं, बोलते वक्त रीड नहीं कर पाते. कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू ट्राइड वेल. ओके, लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन. डैश कवि ही जयदेव. जयदेव के बुक का नाम लिखना है विथ स्य एंड डोंट फॉरगेट वी हैव टू डिलीट म ऐड स्य. डिलीट म ऐड स्य. यस. सो हु विल ट्राई द आंसर? यस अथर्व. Yes, ma'am. Ma'am, गीत गोविंदस्य कविः जयदेवः. परफेक्ट. गीता गोविंदस्य कवि ही जयदेव. ओके, नाउ विल मूव अहेड. ये तो हो गया पहले मैस्कुलाइन जेंडर हो गया. दशरथ, रावण, धृतराष्ट्र, रामः, भीम, ऑल द वर्ड्स वर एंडिंग इन विसर्ग. सो मैस्कुलाइन हो गया. सेकेंड पार्ट में हमने क्या देखा? न्यूटर जेंडर देखा. रामायणम, महाभारतम, रघुवंशम, गीता गोविंदम. यहाँ से हम लोग एक चीज सीखते हैं कि पुल्लिंग एंड नपुंसकलिंग, मैस्कुलाइन एंड न्यूटर जेंडर में वी हैव टू यूज स्य while denoting relation. But what about feminine gender? Now let's understand the feminine gender. We have two boxes again. सीता, उर्मिला, रमा, पार्वती, रुक्मिणी. ये सब गर्ल्स के नाम है फेमिनाइन. एंड राइट साइड में उनके पतियों के नाम, मतलब हस्बैंड्स के नेम दिए हुए. रामः, लक्ष्मणः, माधवः, शिवः एंड विठ्ठलः. अभी यहाँ पे एकदम गौर से सुनो क्या करना है. जब भी आप गर्ल का नाम यूज करोगे देन यू हैव टू यूज याहा
And if you are using a name of boy, that means masculine word, then you have to add sya. I'm repeating it again slowly. When you are using the word which is feminine, then use yaha at the end. And when you are using word of masculine, then use sya at the end. क्यों? हमें रिलेशन दिखाना है. मतलब मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि सीता का पति राम है और राम की पत्नी सीता है. तो मेरा सेंटेंस कैसे होगा? देखो राइट साइड में लिखा हुआ है कस्य पत्नी सीता, रामस्य पत्नी सीता, राम की पत्नी सीता है. एंड कस्याः पतिः रामः, सीतायाः पतिः रामः, सीतायाः. आई हैव एडेड याः. मीनिंग वही है बच्चों, ऑफ सीता. राम इज हस्बैंड ऑफ सीता. प्रेपोजिशन सेम इंग्लिश में, बस हमें अभी जेंडर चेंज हुआ है, इसलिए हमें एंडिंग भी चेंज करनी है. बॉयज के लिए स्य, गर्ल्स के लिए याहा. बॉयज के लिए स्य, गर्ल्स के लिए याहा. ओके, चलो पहले ये ट्राई करो सब लोग. एंड वहां पे और एक चेंज है, आप वर्ड ऑब्जर्व कर सकते हो इन थर्ड सेंटेंस. पार्वत्याः पतिः शिवः. जब इकारांत वर्ड्स है, हमें पता है गर्ल्स के नाम दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं जैसे कि ये लाइक सीता, गीता, रिया, दिया, आकारांत, आ में एंड होने वाले. एंड एक गर्ल्स के नाम होते हैं लाइक पार्वती, रुक्मिणी, गौरी, अंजलि एक्सेट्रा. तो इकारांत भी वर्ड्स के गर्ल्स के नाम होते हैं. तब भी क्या करना है? यहाँ ही ऐड करना है बच्चों, बट एंडिंग वाला ई रब करना है. जैसे पार्वती था तो देखो आप देख सकते हो हाफ वहां पे ऐड किया गया. थर्ड सेंटेंस सबको देखना है. पार्वत्याः, पार्वती बिकम्स पार्वत्याः. पार्वती मीन्स अ पार्वती, पार्वत्याः ऑफ पार्वती. पार्वती is a Parvati, Parvatyaha of Parvati. Okay, I hope you have understood that in feminine gender we have to use yaha at the end. In masculine gender we have to use sya at the end. Chalo, now quickly get ready to answer. Dash patihi Lakshmanah. Yes, Shreya, dash patihi Lakshmanah. उर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः. Very good, perfect answer. चलो next. So you have observed कि श्रेया ने उर्मिला के बाद बस यहाँ ऐड कर दिया. उर्मिला यहाँ पति ही लक्ष्मणः. सेकंड क्वेश्चन, डैश पति ही माधवः. यस संस्कृति, कैन यू टेल मी आंसर? डैश पति ही माधवः. रमायाः माधवः. वेरी गुड, परफेक्ट आंसर. रमायाः पति ही माधवः. चलो नेक्स्ट. यस वेदिका, can you tell me answer for fourth one? Dash patihi Vitthalah. Vedika. Vedika, just try answering fourth one. You are not audible. You are saying something, I can see that, but you are not audible. Okay, no problem. Just drop your answer in chat box. Yes, Atharva. Yes, ma'am. Ma'am. Fourth one. Yes, ma'am. Rukminya patihi Vittalah. Very good. Rukminyaha. Don't forget that ha. Visarga. करेक्ट. चलो फिफ्थ से लेकर 8th तक वी हैव टू यूज स्य, बिकॉज अभी हम पत्नी वर्ड यूज कर रहे हैं. तो जैसे कि रामस्य पत्नी सीता, तो वैसे ही आपको अभी लेफ्ट साइड में सब हस्बैंड्स के नाम यूज करने हैं, राइट साइड में आपको वाइफ के नाम यूज करने हैं. एंड यू हैव टू यूज स्य फॉर द लेफ्ट साइड वर्ड्स. सो यस, फॉर फिफ्थ वन हु विल आंसर? यस वेद. Yes, ma'am. फिफ्थ वन, डैश पत्नी उर्मिला. लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला. Very good, perfect answer. Next, after that, Shreya. Dash पत्नी dash. आपको रमा माधव के लिए लिखना है. हाँ. माधवस्य पत्नी रमा. Very good. माधवस्य पत्नी रमा.
Then next, dash patni Parvati. Yes, Vedika. Ma'am, I'm audible. Yes, you are audible now. Dash Yeah. patni Parvati. शिवस्यः पत्नी पार्वती. हाँ, शिवस्य, not her. Shivasya, Okay, only Sya. शिवस्य. Okay, Vedika, tell me the 8th one also for Rukmini and Vitthal. विठ्ठलस्य पत्नी रुक्मिणीया. No, only Rukmini. Okay, रुक्मिणी. हाँ, very good. Miss, but feminine we use रुक्मिणीया, no? When we have to add of Rukmini, जब हमें मीनिंग ऑफ रुक्मिणी चाहिए. Okay. अभी हम ऐसे बोल रहे हैं ना कि विट्ठल की पत्नी रुक्मिणी है. अगर हमें बोलना है ना कि रुक्मिणी का पति विट्ठल है, तो हम वो यहाँ यूज करेंगे. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Yes. Okay, students. So we have completed half sambandhavachakaha in 3 genders: masculine, then neuter gender, and after that feminine gender. एक बार last time I am repeating, masculine gender के लिए we have to use sya. Neuter gender के लिए again we have to use sya while denoting relation. And while denoting relation of girls or feminine gender, we have to use yaha at the end. Is there any doubt? क्विकली आप अपने अपने टेक्स्ट बुक में ये जो टाइटल है संबंधवाचक का, उसके साइड में लिख के रखो स्य और याहा. तो रिवाइज करोगे तो एकदम जल्दी याद आ जाएगा आपको. ये लेसन मतलब क्या? स्य और याहा. स्य और याहा कब यूज करना है वो आपको पता है. ओके, चलो आगे चलते हैं. अभी ये तो हमने देखा रिलेशन. अभी हमें देखना है पोजेशन. पोजेशन मतलब ये चीज मेरी है. आई एम द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ऐसे अगर मुझे बताना है तो भी मैं ये संबंधवाचक ही यूज करूंगी. देन ऑल्सो आई विल यूज दैट षष्ठी विभक्ति. तो देखते हैं वो कैसे बताना है. तो अभी आप यहाँ पे रीड कर सकते हो. एक बॉक्स में दिया हुआ है एषा मम पाठशाला. एषा मम, मम मीन्स माय. ये वर्ड हमने पहले भी देखा है. सो दिस मम वर्ड इंडिकेट्स पोजेशन. ये मेरी पाठशाला है, ये मेरा स्कूल है. दिस इज माय स्कूल. एषा तव पाठशाला. तव मीन्स योर, मेरी तेरी. तव मीन्स योर, मम मीन्स माय. ओके. देन एषः मम स्यूतः. अगर मुझे मेरी चीज बतानी है देन आई विल यूज मम. एतस्य वर्णः नीलः. अभी ये चीज अच्छे से ऑब्जर्व करो. एतस्य वर्णः नीलः. एतस्य मतलब इसका. ये जो बैग है इसका कलर ब्लू है. तो अगेन यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो. दिस इज माय बैग and the color of bag is blue. color of bag, of मैंने किसके साथ जोड़ा है? बैग के साथ. एंड इसीलिए एतस, एत के बाद स्य ऐड किया हुआ है. एतस्य वर्णः नीलः या स्यूतस्य वर्णः नीलः. इसका कलर ब्लू है. अभी आगे चलते हैं. एषा तव कूपी. ये तेरी कूपी है. कूपी मीन्स बॉटल. एंड एतस्याः वर्णः रक्तः. अभी व्हाई एतस्याः? एतस्याः इज प्रोनाउन यूज्ड फॉर फेमिनाइन जेंडर. कूपी एक बॉटल है ना, वो फेमिनाइन है. एंड ऊपर जो स्यूतः बैग था वो मैस्कुलाइन था, इसलिए वहां पे एतस्य. एंड एतस्याः मीन्स फेमिनाइन. द कलर ऑफ दैट बॉटल इज रेड. सो सिंपली हम स्य एंड याहा यही यूज कर रहे हैं, बट इन प्रोनाउन. अभी यहाँ पे हमें याद रखना है 2 चीजें. मम मीन्स माय, तव means your, एतस्य is for masculine, एतस्याः is for feminine. हम ये जब यूज करेंगे अभी सेंटेंस में तो आपको इजी लगेगा, डोंट वरी. नेक्स्ट है तस्य एंड तस्याः. स्टूडेंट्स इफ यू रिमेम्बर हमने सीखा था एषः एंड सः. याद आ रहा है? एषः मीन्स नियर बाय एंड सः मीन्स फार अवे. एषः बालकः, मेरे पास में ही है. एंड सह बालकः मतलब मेरे से दूर है, तो आई विल कॉल हिम सह बालकः. तो वैसे ही यहाँ पे अभी तस्य एंड तस्याः. तस्य इज फॉर मैस्कुलाइन, तस्याः इज फॉर फेमिनाइन. क्या है ये तस्य तस्याः? जरा रीड करते. सह बालकः, दैट इज बॉय. वो देखो, देयर इज अ बॉय, मेरे से दूर खड़ा है. तत् तस्य पुस्तकम, वो उसके पास बुक है. तत् तस्य पुस्तकम. तस्य मीन्स उसका. मैंने रिलेशन बताया. तस्य मीन्स उसका पुस्तक है. पुस्तकस्य नाम आमोदः. देखो अगेन एंड अगेन आई एम यूजिंग दैट स्य.
वाई? बिकॉज मैं रिलेशंस बता रही हूँ अलग अलग. पुस्तक का नाम आमोद है. द नेम ऑफ बुक इज आमोद. सा तस्य लेखनी. सा मीन्स दैट और फेमिनाइन वर्ड है इसीलिए. लेखनी मीन्स पेन, तो वो उसकी लेखनी है. तस्याः वर्णः कृष्णः. लेखनी का वर्ण ब्लैक है. वर्ण यानी कि कलर. द कलर ऑफ पेन इज ब्लैक, इसलिए तस्याः. अगेन ऑब्जर्व क्या करना है, तस्य कब यूज किया? जब पुस्तक था, बिकॉज पुस्तक न्यूटर जेंडर है. ओके. एंड तस्याः कब यूज किया? जब गर्ल्स यानी कि फेमिनाइन वर्ड यूज किया, लेखनी तब. मतलब यहां से हम सीखते हैं अगेन, तस्य विल बी यूजिंग फॉर मैस्कुलाइन एंड न्यूटर एंड तस्याः वी विल बी यूजिंग फॉर फेमिनाइन. ओके. राइट साइड में देखते हैं फेमिनाइन के लिए. सा महिला, वो देखो मेरे से दूर थोड़ी एक महिला खड़ी है येलो कलर के साड़ी में. तस्याः शाटिका पीता. पीता मीन्स येलो. उसकी शाटिका पीता मीन्स येलो कलर की है. तस्याः, हियर आई हैव यूज्ड तस्याः. डिस्क्रिप्शन बता रही हूं मैं महिला का. उसके जगह पे अगर पुरुष खड़ा होता तो मैं कैसे बोलती? सह पुरुष तस्य युतकम पीतम. युतकम मीन्स शर्ट. उसका शर्ट येलो कलर का है. अगर वो पुरुष होता देन आई विल यूज तस्य, बट महिला है इसीलिए तस्याः. एंड द लास्ट सेंटेंस इज तस्याः स्यूतः कृष्णः. उसकी बैग कृष्ण मीन्स ब्लैक कलर की है. कृष्ण इज ब्लैक, पीत इज येलो, रक्त इज रेड, नीलह इज ब्लू. ओके, तो ये आप कलर्स के नाम भी यहाँ पे आज सीख रहे हो. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तस्याः और स्याः, तस्य एंड तस्याः? एनी डाउट? नो डाउट्स. ओके, तो थोड़े क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते देन क्लियर हो जाएगा. ओके, पहला क्वेश्चन देखो. योग्येन रूपेण गीतम पूरयत. ये एक छोटा सा गाना है, वो आपको अप्रोप्रिएट फॉर्म्स यूज करके कंप्लीट करना है. अभी सबसे पहले समझ के लो क्या है. डैश वर्णः कृष्ण कृष्ण, सब जगह पे आपको ऐसे दिखेगा. वर्णः कृष्ण कृष्ण, वर्णः हरितः हरितः, वर्णः पीतः नीलः एक्सेट्रा. वर्ण मीन्स कलर बेसिकली. तो ऐसे बोलना है कि क्रो का कलर काला है, मैंगो का कलर पीला है, देन लीफ का कलर हरा है एंड आकाश का कलर नीला है. ऐसे छोटी सी पोयम है. तो अभी इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए उसको स्य ऐड करना है कि यहाँ ऐड करना है. कॉमन सेंस यूज करना है. अभी सबसे पहले मुझे बताओ, क्रो जो है वो क्या होगा, मैस्कुलाइन या फेमिनाइन? सिंपल क्वेश्चन. क्रो मैस्कुलाइन होगा कि फेमिनाइन? मैस्कुलाइन. फैंटास्टिक. तो स्य ऐड करोगे कि यहाँ? वेरी गुड, स्य ऐड करोगे. तो वर्ड क्या बन जाएगा? काकस्य. काकस्य वर्णः कृष्णः कृष्णः. कलर ऑफ क्रो इज ब्लैक ब्लैक. कलर ऑफ क्रो. वैसे ही अभी कलर ऑफ मैंगो, कलर ऑफ लीफ एंड कलर ऑफ स्काई, ऐसे आपको आंसर्स देने हैं. रेडी? देखो पहले मैंने सॉल्व किया. काकस्य वर्णः कृष्णः कृष्णः. अदर्स यू हैव टू सॉल्व. यस अथर्व. सेकंड वन दैट इज आम्र. आम्रस्य वर्णः पीतः पीतः. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? The color of mango is yellow. वेरी गुड, परफेक्ट. चलो नेक्स्ट. ये श्रेया. पर्ण. पर्णस्य पर्णस्य वर्णः हरितः हरितः. एंड मीनिंग? Ma'am, parna is leaf. Very good. Is it? Yes, The yes, color it of is leaf. leaf is green. Very good. A leaf. वहाँ पे correct. चलो next. Who will answer for the last one? Yes, Deepika. Gagan. Okay. Yes, ma'am. गगनस्य वर्णः नीलः नीलः. Very good. गगनस्य वर्णः नीलः नीलः. So basically, gaganasya means of
स्काई। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा पहला क्वेश्चन था। अभी दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, यहाँ पे कभी कभी स्य कभी कभी यहाँ यूज करना है। तो कैसे करना है वो पहले मैं बताती हूँ। पहला आप देख सकते हो 3 ओवल्स दिए हुए हमें, 3 ओवल्स वी हैव टू लिंक देम। शर्करा, स्वादह, मधुर, ये 3 वर्ड्स यूज करके मुझे एक सेंटेंस बनाना है। हाउ विल आई फ्रेम द सेंटेंस यूजिंग यहाँ? शर्करा मतलब शक्कर, ये फेमिनाइन वर्ड है। क्यों? क्योंकि आ में एंड हो रहा है। मैंने बाय हार्ट नहीं किया, संस्कृत में ऐसे कुछ बाय हार्ट वगैरह नहीं करना है कि ये वर्ड फेमिनाइन है, ये वर्ड मैस्कुलाइन है, ऐसे कुछ नहीं। मैं कैसे पहचानती हूँ? बिकॉज उसका एंडिंग आकारांत है। एंडिंग आकारांत है मीन्स इट इज लाइक माला, एंड हेंस शर्करा के बाद कंफर्म मुझे क्या ऐड करना है? याहा। तो मेरा सेंटेंस बन गया शर्करा याहा स्वादः मधुरः। स्वाद मीन्स टेस्ट, कैसा होता है? स्वीट स्वीट। सो द टेस्ट ऑफ शुगर इज स्वीट। मैं संस्कृत वाला सेंटेंस फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स। शर्करा याहा स्वादः मधुरः। शर्करा याहा, बस एक वर्ड में मैंने मॉडिफिकेशन किया, रिमेनिंग 2 वर्ड्स वी हैव टू राइट डाउन एज इट इज। तो बेसिकली ये जो सेकेंड एंड थर्ड ओवल्स है ना, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, वो बस लिखने हैं। चेंज कहाँ पे करना है? फर्स्ट ओवल, फर्स्ट जो ओवल है उसमें चेंज करना है। आइदर यू हैव टू ऐड स्यो और यहाँ, और जहाँ पे भी म होगा वर्ड्स लाइक वनम, उसमें रब दैट म एंड देन ऐड स्यो, रब द म देन ऐड स्यो, रब द विसर्ग 2 डॉट्स को रब करो एंड देन ऐड स्यो। ओके, चलो देन हु विल आंसर फॉर यानम? यस श्रेया। यानस्य वेगः अधिकः। वेरी गुड, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? Shreya, unmute yourself. What is the meaning of Yanasya Vegah Adhikah? The car is very fast. Very good. Perfect. Chalo, next. Yes, Atharva. बालकस्य युतकं मलिनम्। Okay, what is the meaning? Ma'am, the boy's shirt is dirty. Wow, correct answer. Chalo, last and little bit difficult one. Yes, Deepika. Yes, ma'am. Okay. नदी को क्या ऐड करोगे आप? यहाँ और स्यो। Yaha, ma'am. वेरी गुड। तो चलो ऐड करो नदी को यहाँ। इफ कूपी बिकम्स कुप्याहा, देन नदी बिकम्स नद्याः जलमः शीतम। Ma'am, what is the शीतम। pronoun? शीतम. शीतम, हाँ, शीतम. वेरी गुड, Yeah. करेक्ट Okay. आंसर बेटा। नद्याः जलम शीतम। नद्याः जलम शीतम. So see how easy the task is. The second question was easy. Just understand whether it is syo or yaha, and then you have to answer or frame that sentence. Okay, Shreya is saying the water is in the river is cool. Yes, correct. River water is cool. और water of river is cool. Of river, इसलिए नद्याः। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। मेलनम कुरुत, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें सिर्फ मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करूंगी बिकॉज प्रोनाउंस आर गिवन देयर। So first understand it. I know you know the answer. If you want to answer, drop your answer in chat box. Okay. एषः, तद, अहम, त्वम एंड एषा, all these are pronouns. ये सब pronouns है। अभी तक आपने सीखा नहीं है, इनके टेबल सीखे नहीं है, बट आपको पता है कि ये कहाँ पे यूज करना है। जैसे कि एषः इज फॉर मैस्कुलाइन सिंगुलर, तद इज फॉर अगेन मैस्कुलाइन सिंगुलर, सॉरी तद इज फॉर न्यूटर जेंडर सिंगुलर, अहम इज फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए फर्स्ट पर्सन, एंड त्वम इज फॉर सेकेंड पर्सन, एशा इज फॉर फेमिनाइन। तो ऐसे अलग अलग जेंडर्स एंड अलग अलग पर्सन के प्रोनाउंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी उसका स्टार्टिंग थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करके आपको उसका रिलेटिव वर्ड बताना है। ओके तो जैसे कि एशः है, तो एशः का क्या हो जाएगा बता? मैस्कुलाइन है तो कॉमन सेंस स्य ही ऐड होना चाहिए। तो स्य वाले 3 ऑप्शन है,
एषः इज मैस्कुलाइन, ये श्रेया करेक्ट, तो उसके पीछे स्य ऐड होना चाहिए। तो फॉर्म कैसे दिखेगा वो, एतस्य तस्य या एतस्याः? यस अथर्व। यस मैम। एषः का क्या होगा फॉर्म? एतस्याः। ओके ठीक से देखो, एषः इज मैस्कुलाइन नॉट फेमिनाइन। यस मैम, एतस्य। वेरी गुड। एंड टेल मी द लास्ट आंसर, एषा का क्या होगा फिर? एषा, एषा इज फेमिनाइन। हाँ, आई विल अनम्यूट यू, जस्ट अ मिनट। यस अथर्व, एषा। एषा एतस्याः। परफेक्ट, थैंक यू अथर्व। तो स्टूडेंट्स, एषः एतस्य, एषा एतस्याः। अभी व्हाट अबाउट तद? तद क्या होगा? तो से शुरू होने वाले दो सर्वनाम हमारे पास है, एक है तस्य एंड एक है तव। कैसे डिसाइड करेंगे अभी? यस दीपिका, कैन यू गेस द आंसर? Yes, ma'am. Ma'am, हाँ, tatsya. वेरी गुड, तस्य करेक्ट। एंड देन व्हाट अबाउट तव? तव का आंसर कब लिखेंगे हम? Tvam, when the tvam. करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट आंसर। Okay. अभी ऐसा क्यों किया वो मैं बताती हूँ। त्वम मीन्स यू, तो योर बोलना है हमें, योर्स। तेरा है तो हम तव यूज करेंगे। त्वम मीन्स यू, तव मीन्स योर्स, and tad means that object and tasya means of that object. Tad is that object and tasya means of that object. Okay, and the last remaining is aham, so I will tell the answer. Aham is for aham the answer is mama. Aham means I am and mama means my. Aham means I am and mama means my. जैसे त्वम का हो गया तव, तो वैसे अहम का हो गया मम। ओके, so this is very highly important question. Question number 3, please star mark it. Okay, now we'll move ahead to question number 4. Simple question, but you have to answer me. And everyone now, please be ready for unmuting yourself because everyone have to answer for the last question. शब्द रूपाणी लिखत, we have to frame forms. कैसे forms बनाने हैं? Just again recognize करना है whether it is masculine, neuter or feminine, and just add स्य or yaha as per the gender. जैसे देवः, I can observe it is masculine, so I will obviously add स्य, it will become देवस्य. अगर कोई गर्ल का नाम होता वहां पे जैसे कि बालिका, then I will add yaha, बालिका याहा. अगर नदी होता then नद्याहा. तो बस that's it, आपको बस forms बनाने हैं of this 20 words. Okay. Yes, so one by one you have to answer. Everybody, you have to answer. Huh? Very easy question. Just add स्य or yaha. No problem if you are wrong. Yes, first Deepika. Suryah. Suryah, Suryasya. Suryasya. Very good. Suryasya, correct. Then Atharva next. Syutah. Atharva Syutah. Yes ma'am. स्यूतस्य. Very good. Next Shreya. Ganeshah. Yes, ma'am. Ganeshasya. Very good. Ganeshasya. Ganesh. Then next Vedika. Padapah. पादपस्य Very good. पादपः is new word for you, means tree. वृक्षः का ही समान अर्थ है पादपः. चलो नेक्स्ट माला, फेमिनाइन वर्ड स्टार्ट हो गया. यस आदित्य. आदित्य फ्रॉम घाटकोपर, प्लीज आंसर. ओके, महक प्लीज आंसर. मालायाः. याहा बेटा, याहा. Okay, ma'am. Sorry. Okay, okay. Yes, Vedika, give me one more answer.
so that your pronunciation will get clear. Unmute yourself and tell me the answer for balika. Balikaya. Yaha. Balikayaha. Very good, very good. Okay, ma'am. Next, Sanskruti. Unmute yourself. Tell me the answer for mapika. मापिकायाः And shatika. शाटिकायाः Very good. Perfect answer. Then Shreyas from Saidam. Unmute yourself. Shreyas. Okay. Then Chandan. Chandan, please try to give 1-2 answers. Quickly unmute yourself. Yes, Krishna. Krishna. Ved. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, Ved. Yes, ma'am. Ved. Yes, ma'am. Answer for Nadi and Droni. Nadiyaha. And for Droni, Droniyaha. Dronyaha. Very good. Yes, Deepika, next. Velanni. Velanni means roller. चपाती बनाने का जो हमारा रोलर होता है उसको वेलन्नी बोलते हैं. दीपिका. Yes, ma'am. Velanni, Velanyaha. Very good. And कर्तरी. Kartari, Kartyaha. कर्तर्याहा. Okay, ma'am. Yes. कर्तर्याहा. Okay. Kartaryaha. हाँ, वो त के ऊपर भी एक रफार है ना, इसीलिए 2 बार र बोलना है. कर तर्याहा. कर तर्याहा. Okay. Okay. Okay, ma'am. Yes. Vedika, next. Jalam and Gruham. Jalasya and Gruhasya. Perfect. And what about Vanam? Vanasya. Correct. Yes, Chandan. Yes, ma'am. It's Shariyasya and Very good. अहम का क्या हो जाएगा बेटा? नहीं. अहम अभी लास्ट 4 के लिए आपको ये टेबल रेफर करना है, मेलनम कुरुता वाला. अहम का क्या सीखा था हमने? मम. हाँ, तो अभी मुझे बताओ एशा का क्या हो जाएगा? बाय रेफरिंग दैट क्वेश्चन नंबर 3, एशा का क्या हो जाएगा? No, you are not audible. एतस्य और एतस्याः. What they have done basically, this is separate OHS image available, which is configured. Okay, you can answer me in chat box. Yes, Atharva. Yes, ma'am. Tell Ma'am, me answer for Aisha. Ma'am, for what question? Ma'am, your screen is not visible. Okay, question number 4, beta. Question number 4, 18th word, Aisha. You have to tell me whether we will use etasya or etasyaha. Same Okay, from question number 3. Etasyaha. Very good. For tuam, what will be the answer? Ma'am, sure. Okay. अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में सीखा ना, तुम के लिए तव. Yes, ma'am. You and yours. Tuam, tuah, and तव. tat, tad. tat, tasya. Yes, ma'am. Okay, अथर्व एक बार मेरे साथ बोलना. एषः एतस्य. एषः एतस्य. तद् तस्य. तद् तस्य. अहं मम. अहं मम. त्वं तव.
त्वं त्वः तव तव and esha etasyaha. एषा एतस्याः. Very good, very good. Thank you so much, Atharva. Thank you, ma'am. Everybody, in this manner only you have to by heart the forms of संबंधवाचकः for pronouns. कैसे करेंगे वो? क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क इट VVVIMP. और उसको एक बार मैं फिर से रीड कर रही हूँ, वैसे ही बाय हार्ट करना है. एषः एतस्य. एवरीबडी प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. एषः एतस्य, तद् तस्य, अहं मम, त्वं तव, एषा एतस्याः. एषः एतस्य, तद् तस्य, अहं मम, त्वं तव, एषा एतस्याः. Is there any doubt? ओके, एक लास्ट पार्ट अभी देखना है. चित्रस्थ शब्दनाम आधारेण वाक्यानि रचयत. सो ना हियर वी हैव वन पिक्चर. पिक्चर में आपको दिख रहा है एक पाठशाला है, गांव की एक स्कूल है. देन स्कूल के आगे आप देख सकते हैं एक ध्वज स्तंभ खड़ा हुआ है. फ्लैग होस्टिंग हम जिसके ऊपर करते हैं वो एक रॉड वहां पे है. देन पुरतः मीन्स इन फ्रंट ऑफ द स्कूल. पृष्ठतः मीन्स behind the school. What is there behind the school? We have big mountains. Okay. Also ऊपरी. ऊपरी मीन्स above. above क्या दिख रहा है हमें? क्लाउड्स दिख रहे हैं एंड पक्षी दिख रहे हैं, सूर्य दिख रहा है. अभी वामतः एंड दक्षिणतः. दक्षिणतः मीन्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द स्कूल there is a garden and on left hand side of the school there is a tree. And last word अधः means below. below क्या है? जमीन है. तो अभी using all these words like पुरतः, पृष्ठतः, ऊपरी, वामतः, दक्षिणतः and अधः, we have to frame some sentences. Okay, so that we'll see in next lecture, but now just write down the meaning of it. Everybody please open your notebook, or you can just write down meaning on your textbook also if you have. पुरतः in front of. पुरतः in front of. पृष्ठतः behind. पृष्ठतः behind. Then next ऊपरी above. ऊपरी above. पृष्ठतः. श्रेया, back. Back in body parts is also पृष्ठ. पृष्ठ or पृष्ठम. And now here we have word पृष्ठतः means behind. It is related. वहां पे पृष्ठः या पृष्ठम means back. पीठ हमारी, पीठ. और यहाँ पे पृष्ठतः means behind. Okay everybody. So पुरतः in front of, पृष्ठतः behind, ऊपरी above, अधः below. अधः below नीचे. ये देखो ये जो वर्ड है ना ऊपरी, उधर से ही हिंदी में वर्ड आया ऊपर. संस्कृत से ही ओरिजिनेट हुआ है हिंदी का वर्ड ऊपर. अधः is below. And last two words students, दक्षिणतः means right hand side and वामतः left hand side. इसको याद कैसे रखना है? सिंपल ट्रिक. दक्षिणा मीन्स डोनेशन. तो दक्षिणा हम कौन से हाथ से देते हैं? राइट हैंड से. इसीलिए दक्षिणतः इज राइट हैंड साइड एंड वामतः इज लेफ्ट हैंड साइड. दक्षिणा हम राइट हैंड से देते हैं, इसीलिए दक्षिणतः इज राइट हैंड साइड एंड वामतः इज लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो हैव यू रिटन ऑल द मीनिंग? पृष्ठतः, पुरतः, ऊपरी, वामतः, दक्षिणतः, अधः. We will frame some sentences in next lecture. Okay, so thank you so much everyone. Punar milamah. And please come with your doubts now because almost 6-7 lessons are completed. So start learning it, start reading it, uske meaning find out karo and
come with your doubts. Doubts are most welcome. Yes, thank you everyone. Bye and Punar Milamah.